good morning. In the last class we discussed about the systems, and we almost discussed all types of classifications: causal system, non-causal system, stable system, unstable system, memory system, memory-less system, linear system, time invariant system. So let us do some problem today in this class, and we will move further after that. So let us write the question. If P is linearity, P stands for linearity, Q stands for time invariance, R stands for causal, and S stands for stability. If a discrete time system, then if a discrete time system is defined as yn is equals to xn for n greater than 0, 0 for n is equals to 0, and x n plus 1 for n less than 0. Where xn is input and yn is output. Then find if the system is whether P or Q or R or S. आपको फाइंड करना है कि सिस्टम लीनियर है या नहीं है, टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है, कॉजल है या नहीं, स्टेबल है या नहीं। सबसे पहले लीनियरिटी देखते हैं। देखो लीनियरिटी के लिए क्या देखते हैं, फॉर लीनियरिटी yn is equals to xn 0 xn plus 1 n greater than 0 n is equals to 0 n less than 0. So if I placed, अगर मैंने xn की जगह इनपुट पर सपोज ए एक्सन दिया, ए एक्सएन, तो एक्सन की जगह ए एक्सन दिया, यहाँ पर ए एक्स एन प्लस 1 दिया। अगर इनपुट मैंने चेंज कर दिया, सपोज एक्सन की जगह ए एक्सएन कर दिया, तो यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। इट मीन्स होमोजेनिटी इज देयर। एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है डायरेक्ट। व्हाट अबाउट द लीनियरिटी? सो फॉर लीनियरिटी y1n, वो सॉरी एडिटिविटी yn1, तो आपको मिलेगा xn1 0 x2n, सिमिलरली y2n x2n 0 x2n plus 1.
अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, सो आई वुड गेट y1n प्लस y2n इज इक्वल्स टू n ग्रेटर देन 0 के लिए x1n और x2n ऐड हो जाएंगे, x1n प्लस x2n फॉर n ग्रेटर देन 0, 0 plus 0 is 0, x1n plus 1 plus x2n plus 1 n less than 0. ये आपको मिल जाएगा y डैश n और ये मिल जाएगा x डैश n. It means additivity is also there, so system is linear. System is linear, so P is there. P stands for linearity. The system is P. Second, time invariance. देखो टाइम इनवेरियंस को कैसे चेक करेंगे. हमारे पास y n है x n 0 x n plus 1 n greater than 0 n is equals to 0 n less than 0. अगर मैं x को n माइनस n नॉट भेजता हूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, x n माइनस n नॉट 0 x n minus n naught plus 1 for n greater than 0, n is equals to 0, n less than 0. But what is y n minus n naught? तो y n minus n naught क्या है, जहां जहां n है वहां वहां आप n minus n naught कर दो. तो यहाँ पे मिलेगा x n minus n naught 0 x n minus n naught plus 1 n minus n naught is greater than 0, n minus n naught is equals to 0, n plus sorry n minus n naught is less than 0. So these two, suppose ये y dash n है, so y dash n is not equals to y n minus n naught, so system is time variant. ठीक है, नॉट q. q क्या था, टाइम इनवेरिएंट, तो सिस्टम इज नॉट q. नेक्स्ट चेक causality, causal. If system is causal, check R. yn is equals to xn 0 xn plus 1 n greater than 0 n is equals to 0 n less than 0. देखो ये फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. मैंने आपको बताया था अगर t प्लस टी नॉट की टर्म मिले या n प्लस n नॉट की टर्म मिले तो सिस्टम नॉन कॉजल होगा. कैसे, सपोज मुझे y1 निकालना है तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी, x2 की. तो सिस्टम इज डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर वैल्यूज, डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर वैल्यूज. एंटीसिपेटरी, दैट इज वाई नॉन कॉजल, नॉट आर. सिस्टम आर नहीं है. लेट्स चेक द स्टेबिलिटी.
is equals to xn 0 xn plus 1 n greater than 0 n is equals to 0 n less than 0 if xn is bounded, तो ये बाउंडेड हुआ और इसका शिफ्टेड वर्जन भी बाउंडेड होगा. इट मीन्स yn is also bounded. So Bibo stability is there. It means system is stable. अगर xn बाउंडेड है तो उसका शिफ्टेड वर्जन भी बाउंडेड होगा. इट मीन्स Bibo stability is there. That is why system is stable. So finally we will write the answer like this. System is P comma S not Q comma R. This is the final answer. ठीक है. Next question. Find P, Q, R and S for yn is equals to sine pi by 6n xn. So first find out system is linear or not. So अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, सॉरी xn को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे yn पर भी ऑटोमेटिकली a से मल्टीप्लाई मिल जाता है. इट मीन्स सिस्टम इज होमोजीनियस. डायरेक्ट अगर a से मल्टीप्लाई xn पे करोगे तो आपको yn पर भी a से मल्टीप्लाई मिल जाएगा. सिस्टम इज होमोजीनियस. एडिटिविटी देखो, अगर मैं अगर मैं उसको x2n भेजता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा इधर, साइन पाई बाई 6n से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा x1n प्लस x2n multiplied by this, and what is y1n plus y2n sine pi by 6n x1n plus x2n. तो ये दोनों सेम है. It means additivity is also there. So system is linear. Additivity is also there. It means system is linear. ठीक है. नेक्स्ट कॉजलिटी चेक करते हैं. अगर मैं एक्स एन माइनस एन नॉट भेजता हूँ इधर तो मुझे मिलेगा साइन पाई बाई 6n एक्स एन माइनस एन नॉट. बट व्हाट इज वाई एन माइनस एन नॉट. वाई एन माइनस एन नॉट इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 6n माइनस एन नॉट इंटू एक्स एन माइनस एन नॉट. ये दोनों इक्वल नहीं है. इट मीन्स नॉट क्यू. सॉरी क्यू नहीं, आर. कॉजलिटी है ना आर. तो इसमें टाइम वेरिएंट चेक कर रहे हैं.
ये चेक कर रहे हैं तो नॉट क्यू. System is not time invariant, system is time variant. Causality check करो. देखो, output is always depending upon present values. n है तो present values, it means system is causal. It means system is causal. Stability check करो. अगर ये बाउंडेड इनपुट है, ये भी बाउंडेड है, it is also bounded, so it will be bounded. The system is P, not Q, R and S. So P, R, S, not Q. ठीक है, अब एक ग्राफिकल क्वेश्चन देखते हैं. The system has the following response for given input. क्वेश्चन है, the system has following response for given input. What is input? ये दिया हुआ है. फर्स्ट F1t अगर देते हैं 0 to 1, so you will get, इसको एक सिस्टम से पास कराते हैं. The response RT is, sorry, R1t is this 0, 1 and 2. It is 1. This is also 1. Second, अगर F2t पास कराते हैं, F2t, what is F2t? इसको पास कराते हैं सिस्टम से, so you get the response R2t. F1t पास कराया, R1t मिला, F2t पास कराया, R2t मिला. Now the last one, third, F3t. If you pass F3t, one, two, three, one, -1, अगर आप इसको सेम सिस्टम से पास कराते हैं R3t, you get this point.
find if S is linear or causal or memory or time invariant. ये आपको चेक करना है। तो हमें एक सिस्टम दिया हुआ है एस, और उसमें से अलग अलग 3 इनपुट्स पास कराएंगे, तो 3 अलग अलग आउटपुट्स मिलेंगे। और हमसे बोल रहा है चेक करने के लिए कि चेक करो कि सिस्टम लीनियर है, कॉजल है, मेमोरी है या टाइम इनवेरिएंट है, इनमें से क्या है। पहले अगर आप F1t और F2t की तरफ देखो, इन दोनों को, और R1t और R2t की तरफ देखो, तो देखो जरा, F1t plus 1, 0 to 1, what is F2t? 2, 3 -1। यानी कि अगर आप F1t-2 करते हैं, माइनस डिले कर दो 2 का और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट F2t। F2t क्या है? F2t is equals to nothing but -1 into F1t-2। Now see the curve of R1t and R2t. R1t 0 to 1, R2t 2, 3, sorry, 3, 4. This is R2t -1. So R2t is equals to, देखो इसको 2 से शिफ्ट करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, R1t-2। तो ये दोनों सेम है, यानी कि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई मिल गया, इट मीन्स इट इज होमोजीनियस। आपने इधर टाइम में शिफ्ट किया, इधर भी एज इट इज टाइम में शिफ्ट मिल गया, इट मीन्स इट इज टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, तो हमें R1 और R2 को देख के 2 चीजें पता चली कि एक तो सिस्टम होमोजीनियस है और एक सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे टाइम से शिफ्ट किया, आउटपुट में भी टाइम से शिफ्ट मिला, दैट इज वाई सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। सही है। और लीनियरिटी चेक करने के लिए एक चीज और देखनी पड़ेगी, एडिटिविटी। सो अब आप F1t, F2t और F3t की तरफ देखोगे, तो आपको मिलेगा F3t इज इक्वल्स टू F1t प्लस F2t। अगर आप R1t, R2t और R3t की तरफ को देखोगे, तो आपको मिलेगा R3t इज इक्वल्स टू R1t प्लस R2t। सो अगर आपने इनपुट में ऐड किया, तो एज इट इज आपको आउटपुट में भी एडिशन मिल रहा है, इट मीन्स सिस्टम इज एडिटिव। दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, इट मीन्स सिस्टम इज लीनियर।
कॉजल नॉन कॉजल देखो, देखो आप तीनों इनपुट देख लो, तीनों इनपुट देख लो एक बार, 0 1 F1T 2 3 F2T 0 1 2 3 1 -1 1 1। तो आपको क्या मिल रहा है इधर, ये इधर मिल रहा है ये, और इसमें मिल रहा है ये। देखो कॉजलिटी कैसे चेक करेंगे, सिस्टम इज कॉजल और नॉन कॉजल। जीरो से स्टार्ट हो रहा है इनपुट, आउटपुट भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आउटपुट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट वैल्यू ओनली। आउटपुट में सिस्टम की और कोई वैल्यूज नहीं आ रही है, 2 से 3 है, ये 2 से 4 है, 0 to 4 2 2। ठीक है, तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 + 1 2 है, तो ये टोटल 4 है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड सिग्नल हैं दोनों। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सिग्नल राइट हैंड साइड होते हैं तो सिग्नल विल बी कॉल्ड कॉजल सिग्नल। सो ऑल थ्री सिग्नल्स आर कॉजल, आउटपुट इज ऑल्सो कॉजल, तो सिस्टम इज कॉजल, सिस्टम इज कॉजल। नेक्स्ट देखो मेमोरी, मेमोरी कैसे चेक करोगे, देखो इस सिग्नल को आपने सिस्टम से पास कराया और आपको ये मिल गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या था, ये स्टैक में था, दिस सिग्नल इज इन स्टैक एंड दिस सिग्नल इज इन रैम। तो स्टैक इज कन्वर्टेड इनटू रैम, कन्वर्टेड इनटू रैम। अगर आप इनपुट को सिस्टम से पास कराओगे तो स्टैक किस में कन्वर्ट हो रहा है, रैम में। यानी कि सिस्टम में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, इंटीग्रेशन का। अगर सिस्टम में इंटीग्रेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इट मीन्स इट हैज टू स्टोर सम डेटा फ्रॉम -infinity to t to calculate the present value. So to calculate the present value, it has to store some past values. It means storage is there. It means system is memory. System has some memory. ये कल की क्लास में हमने देखा था, if integration or differentiation is involved in the operation in the system, then there are some L and C component, inductive and capacitive component, and inductive and capacitive components always store some energy, and there are some memories. So whenever the L and C are involved, then system must have some storage, or system will be a memory system or dynamic system. So this is the question, this was the questions. ठीक है, एक और देख लेते हैं। Response of a LTI system to an input del n is yn, यानी कि डिस्क्रीट सिस्टम है, एक एलटीआई सिस्टम है जिसको अगर आपने इनपुट में डेल एन दिया, इम्पल्स दिया, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वाई एन। हाँ,
सो अगर आपने डेल एन दिया तो वाई एन आपको कैसे मिलेगा? दिस इज वाई एन। एक इम्पल्स मिलेगी 0 पर और एक इम्पल्स मिलेगी -1 पर। सो वाई एन वुड बी del n minus del n minus 1। सो वाई एन क्या होगा? del n minus del n minus 1। क्वेश्चन ये बोल रहा है what would be the response of system if input is fn। और fn क्या है? fn है ये। सो एक सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम, डिस्क्रीट। आप उसको अगर इनपुट पे डेल एन देते हो तो आपको वाई एन मिल जाता है। अगर आप उसको एफ एन दोगे तो क्या मिलेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो इसको देखो ऐसे कर देते हैं। पहली बात तो सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, तो यानी कि सिस्टम लीनियर है। दूसरा टाइम इनवेरिएंट है, सो एडिटिविटी इज एप्लीकेबल, होमोजेनिटी इज आल्सो एप्लीकेबल। टाइम इनवेरिएंट है तो टाइम को शिफ्ट करने से सिस्टम के पैरामीटर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट इज वाई हम क्या कर सकते हैं, अगर सिस्टम को हमने डेल एन दिया तो हमें क्या मिला? डेल एन माइनस डेल एन माइनस 1। और अगर मैं सिस्टम को माइनस डेल या डेल एन माइनस 1 दूंगा, क्योंकि ये लीनियर एल टी आई टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, तो एज इट इज मुझे यहाँ ये मिल जाएगा डेल एन माइनस 2। अगर मैं यहाँ माइनस दूंगा, माइनस डेल एन माइनस 1, तो एज इट इज यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम है। क्योंकि लीनियर है, एडिटिविटी भी होगी, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, डेल एन माइनस डेल एन माइनस 1, तो मुझे यहाँ पर इन दोनों का ऐड डायरेक्ट एडिशन कर दूं, डेल एन माइनस डेल एन माइनस 1 माइनस डेल एन माइनस 1 प्लस डेल एन माइनस 2। सो दिस इज नथिंग बट एफ एन। तो आपको आंसर मिल गया कि अगर आपको एफ एन मिला, अगर आप एफ एन दोगे सिस्टम को, if you give the fn to the system, you will get del n minus 2 del n minus 1 plus del n minus 2। It means अगर आप सिस्टम को ये दोगे तो आपको क्या मिलेगा? y डैश एन ले लो, 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 0 1 एंड 2। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने अगर सिंपल डेल एन दिया था तो आपको यहाँ पर ये मिल रहा था।
अगर आपने del n दिया था तो आपको yn मिल रहा था, अगर आपने fn दिया तो y डैश n मिल रहा है। तो दिस इज द आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नाउ व्हाट इज y डैश n? अगर y डैश n को देखो, y डैश n इज इक्वल्स टू del n minus 2 del n minus 1 plus del n minus 2। एंड व्हाट इज, और yn क्या है? del n minus del n minus 1। सो yn और y डैश n में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? तो yn माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? del n माइनस 1 माइनस del n माइनस 2। इसमें से ये माइनस करो तो आपको मिल जाएगा y डैश n इज इक्वल्स टू yn माइनस yn माइनस 1। सो आप लिख सकते हो fn इज इक्वल्स टू yn माइनस yn माइनस 1। ये आपने कैसे फाइंड किया? ये आपने फाइंड किया सिर्फ लीनियरिटी प्रॉपर्टी से और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी से। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये ख़त्म हो गया आपका। अब मैं आपको एलटीआई सिस्टम का थोड़ा सा और बताता हूँ कि if a सिस्टम इज एलटीआई और मैं उसको डेल एन देता हूँ इनपुट पे। कोई सिस्टम है, ये एलटीआई सिस्टम है, और मैं उसको डेल एन देता हूँ इनपुट पे, तो मुझे आउटपुट पे सपोज वाई एन मिल रहा है। वाई एन ना लेके इसको एच एन ले लो। एच एन क्यों लेते हैं मैं बताता हूँ अभी। अगर मैं किसी भी सिस्टम को इनपुट पे इम्पल्स दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट पे क्या मिल रहा है? एच एन। क्योंकि ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, तो टाइम में अगर आप चेंज करोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। के लोगे तो आपको इधर भी के ही मिलेगा। हुँ? अगर आप डेल एन माइनस के लोगे तो आपको इधर भी, जैसे जैसे आप वहाँ इनपुट में चेंज करोगे आउटपुट में आपको चेंज मिलेगा। अगर आप f1n से मल्टीप्लाई करते हो या f1k से मल्टीप्लाई करते हो तो इधर भी आपको f1k से मल्टीप्लाई मिलेगा। अगर मैं f1k1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं f2k2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन यू विल गेट f2k2 h n माइनस k। या इसको बोले अगर हम fk से मल्टीप्लाई करते हैं, सो आई विल गेट f1 सॉरी fk del n माइनस k। ये करेक्ट है? सॉरी h n माइनस k। अगर मैं इसके आगे k इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ले लेता हूँ, एफ के डेल एन माइनस के, तो मुझे, और इसको एलटीआई सिस्टम से पास कराते हैं तो मुझे इधर भी एज इट इज समीशन मिल जाएगा। एफ के एच एन माइनस के। ये देखो क्या है,
सिग्मा के इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ के डेल एन माइनस के। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ के डेल के माइनस एन। क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, सिर्फ के पर। और आपको अगर याद हो कि डेल में क्या होता था कि अगर एफ टी इंटू डेल टी माइनस ए है तो आपको मिल जाता था एफ ए डेल टी माइनस ए। ये कुछ कुछ ऐसा ही है। टी की जगह क्या है, के है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एफ के इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एन डेल एन माइनस के माइनस एन। ठीक है, क्योंकि फंक्शन के पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एन बाहर आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा एफ एन सिग्मा के इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल के माइनस एन। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में पूरा एरिया देखेंगे किसी एक फंक्शन का जो शिफ्टेड है डेल का, तो वो हमेशा क्या होता है, 1। ये आपको कई बार बता चुका हूँ। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एफ एन। इट मीन्स ये क्या हो गया, एफ एन। इट मीन्स कि अगर आप सिस्टम को एफ एन को किसी एक एलटीआई सिस्टम से पास कराएंगे तो उसका रेस्पॉन्स क्या हो, कैसा होगा, एफ के सॉरी के इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ के एच एन माइनस टी। ठीक है, where where hn is the output when del n is input। यानी कोई एक सिस्टम है एस, अगर आपने उसमें से del n पास कराया तो आपको क्या मिलेगा, एच एन। अगर आपने उसमें से एफ एन पास कराया तो आपको क्या मिलेगा, इसको सपोज मैं ले लेता हूँ वाई एन, तो आपको मिलेगा वाई एन। सो वाई एन is the response of the system when input is Fn and Hn is the response when input is del n. So Hn is called unit impulse response. It represents the system itself. Hn क्या होगा, Hn को आप हमेशा क्या क्या बोलेंगे, Hn इज द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, क्योंकि ये सिस्टम का वो रिस्पॉन्स है जब आप उसको डेलन दे रहे हो। डेलन मीन्स यूनिट इम्पल्स। अब देखो डेलन को जब आप ट्रीट करेंगे ना, डेलन का एरिया 1 होता है। तो अगर मुझे किसी भी सिस्टम का आउटपुट पता करना है, वो सिस्टम किस तरीके का है, उसका रिस्पॉन्स पता करना है, तो मैं उसको क्या दूंगा, डेलन। मैं डेलन दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, हमेशा एच एन। यानी कि मुझे सिस्टम का रिस्पॉन्स, वो सिस्टम पता लग जाएगा, वो सिस्टम क्या है। अगर मुझे सिस्टम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता करना है, डेल एन इज ए टेस्ट सिग्नल।
तो मैं एक टेस्ट सिग्नल दूंगा उसको, कौन सा टेस्ट सिग्नल, डेलन, और मुझे क्या पता लग जाएगा, उसका रेस्पॉन्स पता लग जाएगा, सिस्टम पता लग जाएगा, एग्जैक्टली सिस्टम क्या है। जैसे जैसे अगर आपको अपने आप को देखना होता है कि आप कैसे दिख रहे हो, तो आप शीशे के सामने जाते हो, यानी कि एग्जैक्टली सेम यूनिफॉर्मिटी, यू नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन द मिरर। सो एग्जैक्टली अगर आपको एच एन को देखना है, तो डेल एन उसके लिए कैसे काम करेगा, मिरर का, है ना। तो आप मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर में 1 से, तो आपको 1 ही मिल जाएगा वापस। सो एच एन में अगर आप किस सिस्टम को डेल एन दोगे, तो वापस आपको एच एन ही मिल जाएगा। ये कोई सिस्टम है एच एन, जिसका रेस्पॉन्स एच एन है, इसने आपको डेल एन दिया, तो आपको वापस एच एन ही मिल जाएगा। तो एज ए वन काम कर रहा है ना ये। बट अगर आप किसी भी सिस्टम को एफ एन देते हो, तो वो सिस्टम से पास होगा और आपको वाई एन मिलेगा। तो इसको इस तरह लिखते हैं, वाई एन इज इक्वल्स टू एफ एन कन्वोल्यूशन एच एन। वाई एन इज इक्वल्स टू एफ एन कन्वोल्यूशन एच एन, और इसकी वैल्यू क्या थी, हमने देखा था, k इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ के एच एन माइनस की। यानी कि अगर हमें सिस्टम पता है, सिस्टम को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एच एन से, और मुझे कोई इनपुट मिल जाए और मैं उसका आउटपुट निकालना चाहता हूँ, सो आउटपुट विल ऑलवेज बी कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट as well as the response of the system, which is equals to k is equals to minus infinity to infinity f k h n minus k। तो एच एन कैसे निकालूंगा मैं, पहले सिस्टम को डायल एन दो, जो भी आउटपुट में मिलेगा वही आपको एच एन मिल जाएगा। अगर मुझे एच एन नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम को डायल एन दूंगा नॉर्मल, इन यूनिट इम्पल्स टेस्ट सिग्नल्स हमारे पास हमेशा होते हैं, जो भी आउटपुट पे मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एच एन। एच एन का फिर उसके बाद जो भी मुझे आउटपुट पता करना है, उस किसी भी इनपुट का रेस्पॉन्स पता करना है, तो इस इनपुट को एच एन के साथ कन्वोल्यूशन कराऊंगा, and then if we do the convolution of hn and del n, we will get yn. So convolution is very much important. Convolution, what is convolution? Convolution is the operator represented by this, and it represents the operator which shows the response of the system by processing the input with the system। So एक प्रोसेसिंग, एक ऑपरेटर हमने लिया, मल्टीप्लिकेशन नहीं है उसमें, सारे इसमें सब आ जाते हैं, है ना। तो आप सिस्टम को इनपुट के साथ कन्वोल्यूशन करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। किसी भी सिस्टम का आउटपुट मुझे पता करना है, तो मुझे क्या करना होगा, उस इनपुट को सिस्टम के साथ कन्वोल्यूशन करो, जो भी सिस्टम का रेस्पॉन्स है, और आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो कन्वोल्यूशन का जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू यही है, एफ एन कन्वोल्यूशन एच एन इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ के एच एन माइनस के। और अगर एफ टी कन्वोल्यूशन एच टी करूं, तो
समेशन बिकम्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n था, यहाँ पर t था, यहाँ पर आ जाता है f t k के बजाय टॉ h n है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर t आएगा टॉ dt। So for the discrete time, convolution is this. For the continuous time, convolution is f tau h t minus tau। एक नोट लिखेंगे, नोट, convolution is response of LTI system। आप किस सिस्टम का कन्वोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो? अगर वो सिस्टम LTI सिस्टम है, then only it is applicable। So from now on, whatever the system we will consider it as LTI system। We will assume a system is LTI system। We can also check it whether it is an LTI system or not, then only we can perform the convolution। ठीक है? And from now on, a discrete system will be represented as Hn and continuous system will be represented as Ht। तो जहां पर भी Ht लिखा होगा, इसका मतलब क्या है कि आपने सिस्टम को यूनिट इम्पल्स इनपुट दिया होगा और आपको आउटपुट में ये मिल रहा होगा। आपने सिस्टम को डेल एन दिया होगा और आउटपुट में आपको एच एन मिल रहा होगा। तो ये एच एन और एच टी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच एन और एच टी आर सिस्टम्स, और कौन से सिस्टम्स होंगे? एल टी आई सिस्टम्स होंगे। तो ये ध्यान रखना, एच एन एंड एच टी आर ऑलवेज एल टी आई सिस्टम्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो।